Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, we are not going to have a live class. We will have a recorded class. Okay. As we all know that our first chapter is over. Who did Patrick's homework? The question answers were already discussed in the class, but in written format, it's not yet provided to you. Also, your homework is assigned to you on FlipLearn app. Some of you might not have understood what is the homework assigned to you. So once again, I will tell you in the by sharing the screen what homework actually you have to do. Answers are already provided to you for it, but still for better understanding, who did not understand what the homework is, I will show you in the form of screen. Just have a look. So what you have to do is directly I am entering into exercise section. Okay, I am entering into exercise section. Your textbook page number 11 is there. I told you working with language. This is the heading. This is the heading of your question, working with language. Question number A, this one. This one. The answers of this are given to you already. And the next page, this one. Question number B. So question number A and B, that is on page number 11 and page number 12 of your honeysuckle textbook, that is your homework. These answers are already provided to you. What you have to do is you have to just note down in your notebook, okay, and submit on FlipLearn app. All have to submit the homework compulsorily. Today, I am not providing question answers to you. That will be provided to you in live class. Today, we will just have a look over the next poem of your honeysuckle book, that is A House, a Home. Okay, A House, a Home. I'm sharing the screen of the lesson with you. Just have a look over it. I hope it is clear to you. You can see this. I just hope so. The poem is written by Lauren M. Holly. Lauren M. Holly, ये एक American writer है. Okay, she is an American writer, and she was born on 8th December 1921. She was born on 8th December 1921 and on September 7th 2006 she died. She was born in USA. Okay, USA में इनका बर्थ हुआ था. ये जो ऑथर है, इन ऑथर की खासियत ये है, द पोएटेस. What is the very good thing, what is the big thing about the writer is she writes in simple language, but what she writes is thought provoking. जो वो लिखती है वो हमेशा thought provoking होता है, मतलब वो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है. Writes very small thing, very simple thing. Okay, in simple language she will write, but whatever she will write, it will have a very great impact on person who is reading. ठीक है, on reader's mind it will have a great impact. वो reader को सोचने पे मजबूर कर देती है. इस टाइप की writings उनकी होती है. Let us have a look. You can see what is the title of the poem, A House, a Home. House और एक home के बारे में. तो एक हाउस में और एक होम में फर्क क्या होता है, ये उन्होंने अपने वर्ड्स के अंदर हमें यहाँ पर बताया है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. ओके, यू कैन सी हियर व्हाट इज अ हाउस. हाउ डज शी डिस्क्राइब्स अ हाउस. शी हैज डिवाइडेड द पोएम इनटू जस्ट 2 stanzas. The first stanza of what house is and what a home is. Okay, see carefully. Certain things you may not understand here what is written in the poem, so pay attention to when I am telling you. What is a house? एक घर क्या है, मकान क्या है. It's brick and stone. ईंटों से और पत्थरों से खड़ा किया हुआ कमरा होता है मकान, एक हाउस. And wood, that's hard. It is also made up of wood, and wood is hard, whereas a home is not hard. It's made up of feelings, है ना. एक घर लोगों, जो घर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी फीलिंग से बना हुआ होता है, और एक मकान हार्ड चीजों से बना हुआ है. इट्स मेड अप ऑफ ब्रिक, इट्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड इट्स मेड अप ऑफ वुड. और क्या क्या होगा हाउस में?
Some window glasses, windows will be there, window glasses will be there, and perhaps a yard. Perhaps मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद, क्योंकि हर किसी के घर में यार्ड नहीं होता. व्हाट इज अ यार्ड? यार्ड को हम अहाता भी कहते हैं. कोई कोई लोग शायद अहाता वर्ड समझते नहीं होंगे. अहाता का मतलब होता है आंगन, ठीक है. हर किसी के घर के सामने आंगन नहीं होता, हर किसी के घर के सामने आंगन नहीं होता है, कोई कोई घरों के सामने आंगन होता है. दैट्स व्हाई वर्ड परहैप्स इज यूज्ड, शायद. इट्स ईव्स एंड चिमनीज. ईव्स किसको कहते हैं? छज्जा. छज्जा मतलब समझते हैं आप? छज्जा मतलब होता है जैसे खिड़की वगैरह होते हैं, हमारे दरवाजे वगैरह होते हैं. जब बारिश आती है तो खिड़की और दरवाजों से डायरेक्टली एंटर होती है हमारे, है ना. तो वो बारिश या कुछ चीजें हमारे घर के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या बनाते हैं, एक छोटी सी उसके ऊपर ना दीवार सी खींच लेते हैं, है ना, दरवाजे के ऊपर और खिड़कियों के ऊपर. उनको हम क्या बोलते हैं? छज्जा बोलते हैं. तो छज्जे का मतलब होता है ईव्स इन इंग्लिश. एंड चिमनीज, यू ऑल नो दिस. घर के अंदर से धुआं निकालने के लिए हम चिमनी का इस्तेमाल करते हैं. इन बिग बिग होटल्स, इन बिग बिग what we say manufacturing units and all, है ना, we see chimneys. अंदर का जितना भी धुआं है वो बाहर जाने के लिए. बड़े बड़े होटल्स के किचन में भी होता है, और आजकल हम लोग हमारे छोटे से 2 BHK के होम में भी चिमनीज लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, ताकि धुआं डायरेक्टली बाहर निकल जाए. And tile floors, what all things will be there? Then tile floors will also be there. And stucco and roof. This is stucco. Stucco नहीं बोलना है इसे. What is this? This is stucco and roof. What is a stucco? दीवारों को ढकने के लिए जो प्लास्टर का इस्तेमाल होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टको, है ना. सीमेंट से जो प्लास्टर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टको. एंड रूफ, रूफ वी ऑल नो, छत. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और ढेर सारे दरवाजे होते हैं. तो इस तरह से एक घर का डिस्क्रिप्शन हमको दिया हुआ है. दैट हाउ इज अ हाउस? इट्स मेड अप ऑफ ब्रिक, इट्स मेड अप ऑफ स्टोन, एंड द वुड इज ऑलवेज हार्ड. सम विंडो ग्लासेस विल बी देयर, अ यार्ड में बी देयर, इट विल हैव ईव्स, चिमनीज, फ्लोर, टाइल फ्लोर्स, stucco, roof, and so many doors. This is what a house is all about. Then next stanza is what home is. What is a home? It's loving and family and doing for others. एक घर क्या होता है? घर के लोगों के बीच में, घर के सदस्यों के बीच में प्यार, फैमिली मेंबर्स में प्यार, और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना, है ना. एक दूसरे के लिए कुछ भी करने की भावना, उनका अच्छा करना, उनकी मदद करना, मदद की भावना रखना, ये होता है एक घर. ये होता है एक घर. इट हैज ब्रदर्स. देखो ये इट्स नहीं है, ये इट्स नहीं है, इट इज नहीं है. It has, what you have to pronounce here, it has, this is the short form. It has brothers and sisters and fathers and mothers. घर में कौन रहेंगे? ब्रदर रहेगा, सिस्टर रहेगी, मदर रहेंगे, फादर रहेंगे. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. It's unselfish acts. घर के लोगों में निस्वार्थ भावना होना, बिना किसी स्वार्थ के काम करना, एक दूसरे की मदद रखना, अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को, हर एक चीज को शेयर करना, काइंडली शेयरिंग एवरीथिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्यार करने वालों को, प्रियजनों को ये दिखाना कि आप उनकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आप उनकी कितनी चिंता करते हैं. इसका मतलब होता है घर. घर वो होता है जो भावनाओं से बना होता है. घर वो होता है जो घर के लोगों की फीलिंग से बना हुआ होता है, उनके इमोशन से बना हुआ होता है. जिन घरों के अंदर, घर वो होते हैं जिसमें बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, है ना. घर वो होता है जिसमें सेलिब्रेशंस होते हैं. घर वो होता है जिसमें सुख है. घर वो होता है जिसमें दुख है. घर वो होता है जिसमें अपनापन है. लेकिन मकान क्या है? मकान सिर्फ ईंटों से, पत्थरों से, दीवारों से खड़ा किया हुआ कमरा है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. भावनाएं किसमें जगती है? एक घर में जगती है. तो देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में, कितनी सिंपल सी लैंग्वेज में हमको ऑथर ने, लॉरेन ने इतनी अच्छे से ये बात समझाई है कि एक घर में और एक मकान में क्या अंतर होता है ना. मैंने कहा था ना, द Lauren M. Holly, the author, the writer, has thoughts that are provoking, जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देते. तो देखिए आज कहीं ना कहीं जब मैंने आपको ये पोएम सिखाई है तो सभी के मन में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव सी फीलिंग तो आई ही होगी. सभी के मन में घर का विचार तो आया ही होगा, है ना. तो
her thoughts are always provoking. I hope so this much part of the lesson was clear to you. Let us see the remaining part of the lesson in the next period. If you want me to provide the answers of this poem also, I will provide you in the next class. Today we will have this much only. What your homework is, what you have to do, you have to learn this poem thoroughly, okay, along with the meanings that are given to you. मैं लगे तो आपको चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर एनोनेट करके मैं यहाँ के मीनिंग्स आपको लिख कर दे देती हूँ, ठीक है. The meanings you can see here. यार्ड का मतलब आपको नहीं पता था तो मैं यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ आंगन. देखिए ये इससे अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आती है तो आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है. आंगन मैंने कहकर बता दिया, सबको पता है आंगन कैसे लिखा जाता है. आंगन, ओके. अहाता मतलब होता है आंगन. देन ईव्स, ईव्स का मतलब मैंने आपको बताया था छज्जा, है ना. ये इधर ले लेते हैं हम. देन चिमनीज, धुआंकश. धुएं को निकालने के लिए जो होती है ना. चलिए इतना होप्स आपको समझ में आ गया है सब लोगों को. फिर रूफ का मतलब मैंने आपको बताया था छत. स्टको, स्टको का मतलब कहा था दीवारों पर जो प्लास्टर होता है उसे हम कहते हैं, तो प्लास्टर लिख कर दे रही हूँ मैं सिर्फ आपको, ठीक है. तो आपने समझ लेना है प्लास्टर. प्लास्टर दीवारों पे ही चढ़ती है, ये सबको ही पता होता है. तो ये मीनिंग्स आप नोट डाउन करके रख लेंगे अपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर. आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ओके. आई थिंक दिस मच वाज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग. रिमेनिंग डाउन साइड वॉट एवर वॉज देयर, आई डोंट थिंक. हाँ, अनसेल्फिश का मतलब शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो निस्वार्थ, है ना. जिसमें स्वार्थ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, निस्वार्थ. चलिए आज के लिए इतना काफी है, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, ओके. सो for today this much part of the poem was enough. Kindly learn the poem, okay. Kindly learn the poem, all of you. I want you to learn everything. In the next class whenever I will take, I will randomly pick 4 or 5 students among you and will ask you to write what was I will ask you about the poem, okay. Come on then, okay. I am clearing everything now. Till then, take care all of you. Be happy, stay safe and have a nice day. Thank you.